Hello students, this is the second part of the video My Childhood. In the earlier video, we have already discussed so many things about Kalam and his childhood, especially how did he earn his first wake. In this way, we also learned means how his family members were involved in all the ceremony, especially Rama Kalyanam ceremony that was held in Rameshwaram. So in this paragraphs especially we discuss a lot things, so but here from this paragraph onward we learned about his school life, I mean how was his school life, and here especially we discuss the two lessons. There are two events that occur with his teachers. So this is the first event. So what is the first event? Let's see it. One day when I was in the fifth standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Sastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu Christian sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. So here you will be able to see here he has described about his childhood, means when he was in fifth standard. Fifth standard at which school, and the name of the school is mentioned here, Rameswaram Elementary School. It means when Kalam was in class 5th at the elementary school, at the time a new teacher came to their class, and here there is a description about him. Means I generally used to wear a cap and that marked me as a Muslim, and my friend, that is his name is Ramananda Sastri. So here there is a description given here like that he wore a sacred thread. I think all of you have seen generally ब्राह्मण लोग वो पहनते हैं, तो sacred thread वो पहना हुआ था. So it shows that clearly means that he was a Hindu. So the teacher saw us one Muslim boy, that was I, and my friend Amananda Sastri, he was a Hindu. Both of were sitting together. But in our social ranking at the time, the new teacher saw in the perspective of the society. So and he saw and he could not stomach it. उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, and that's why he told me to go and sit on the bank bench. अब इसी वजह से मुझे वो लास्ट बेंच में मुझे भेज दिया गया, and that time I felt very sad. ये मुझे बहुत बुरा लगा. And so Ramananda Sastri also he felt bad, and he looked utterly downcast, and he was very worried, he was very upset when I was shifted to the last bench. And at the time I saw my friend Ramananda Sastri. At the time he was weeping, he was crying, and that give me a last impression on me. तो ये सब मुझे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं भी समझ पाया, और अभी भी दैट इज आई कैन इमेजिन, आई कैन रिमेंबर ऑल दोज इंसिडेंट. So in this way, in the next paragraph it is mentioned that after school we went home. So when the school completed, then we go home and we told our respective parents about the incident. So here he is saying that means I went to my father and went after the school, and I told him all this incident. And my friend also Ramananda Sastri, he also described the incident to his father. And Lakshmana Sastri summoned the teacher, and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है लक्ष्मणा शास्त्री. तो उन्होंने क्या किया, ही समन द टीचर व्हेन ही लिसन ऑल द इंसिडेंट फ्रॉम अस. तो उन्होंने समन किए मतलब बुलाना. तो और हमारे सामने उन्होंने तो टीचर को बोले कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. जो इनइक्वालिटी मतलब हमारे बीच में जो डिफरेंस है, इस तरह का पॉइजन बच्चों के मन में स्प्रेड ना करने के लिए उन्होंने बताए. और उन्होंने कम्युनल इंटॉलरेंस, ये सब बच्चों के दिमाग में, इनोसेंट माइंड में हमें ना डालने के लिए बोली. क्योंकि देखो बच्चे बहुत प्योर होते हैं,
यदि हमें बचपन से हम सिखाएंगे ये सब सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, सो ऑब्वियसली दे विल ग्रो इन दोज इन्वायरमेंट एंड ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन एंड वी कैन नॉट लिव इन हार्मनी। तो ये सारा प्रॉब्लम हुआ। तो बच्चों के मन में हमेशा अच्छी बात हमें डालना चाहिए। तो उन्होंने ये सब बातें उन्होंने समझा है। एंड ही ब्लॉन्डली आस्क्ड द टीचर टू ईदर एपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो उन्होंने डायरेक्टली ब्लॉन्डली इन द डायरेक्ट वे उन्होंने बोला टीचर को, यू हैव टू एपोलोजाइज, तुम्हें एपोलोजाइज करना है, नहीं तो तुम ये स्कूल छोड़कर और ये आइलैंड छोड़कर चले जाओ। तो मतलब यहाँ से क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि लक्ष्मण शास्त्री दो ही वॉज ए हिंदू बट ही वॉज नॉट सीइंग द हिंदू मुस्लिम इन द सोशल अकॉर्डेंस। तो उनके हिसाब से सब सन थे, सब इक्वल थे। तो उन्होंने डायरेक्टली ब्लॉन्डली उन्होंने वो टीचर को बुलाकर उनके सामने ये सब कहा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। मगर वो टीचर वो रिग्रेट की। हैविंग लिसन द थिंग्स फ्रॉम राम एंड लक्ष्मण शास्त्री, तो उनको समझ में आ गया और उनको बिहेवियर के लिए उन्होंने पछतावा किए। और उसके साथ साथ ये जो लक्ष्मण शास्त्री जो उन्होंने बताए और वही यंग टीचर को रिफॉर्म कर डाला यानी बदल डाला। तो उसी दिन से उनका जो सोच भी बदल गया। सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट हैड टेकन प्लेस विथ कलाम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट incident then? Let's see the another incident. On the whole, the some small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramanian Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तो यहाँ पर नेक्स्ट इंसिडेंट हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देयर इज क्लियर डिस्क्रिप्शन द रामेश्वरम दैट वाज स्मॉल सोसाइटी बट there was the segregation, there was the separation, there are different community, different social groups were there. So it was divided into very small groups, very different groups. However, but मेरे जो साइंस टीचर है, जो उनका नाम क्या था, व्हाट द नेम ऑफ माय साइंस टीचर, शिवा सुब्रमण्यन आयर, वो क्या थे, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब जो अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हो, वो दैट ही इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते थे और उनके वाइफ थे जो शी वॉज ऑल्सो वेरी कंजर्वेटिव एंड वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल। और मगर जो शिव सुब्रमण्यन आयर थे थोड़ा सा एक रेबल की तरह। रेबल का मतलब जानते हो, रेबल मतलब ए पर्सन हु गोज अगेंस्ट द सोसाइटी या गवर्नमेंट, थोड़ा सा अपोजिट सोचना, अपोजिट विरोध करना, ये होता है रेबल। तो वो शिव सुब्रमण्यम ही बिलोंग टू ए ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, ही हैड ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ बट ही वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, मगर वो रेबल जैसे इनसे थोड़ा सा अलग हटके थे। ही डिड हिज बेस्ट, और वो काफ़ी प्रयास करते थे कि जो सोसाइटी में जो बैरियर्स है, मतलब विभिन्न तरह तरह के जो लोगों के बीच में, नहीं ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, ये सभी तो ये जो बैरियर को वो तोड़ना चाहते थे ताकि सभी लोग, ऑल द पीपल, ताकि वो इजीली मिंगल हो सके। तो ये उनका मतलब सोच था। ही यूज टू स्पेंड आवर्स, और ज़्यादातर वक्त वो मेरे साथ बिताते थे। एंड ही वुड से, और मुझे कहते थे, क्या कहते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पायर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। मैं चाहता हूँ तुम इतना डेवलप करो, इतना तरक्की करो कि तुम क्या हो, बाकी जो शहर के, जो बड़े बड़े शहर के जो एजुकेटेड पीपल है, उन्हीं के सोच के साथ तुम सेम हो जाओ। तो इसका मतलब ज़्यादातर जनरली क्या होता है, कुछ एजुकेटेड पीपल जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, स्पेशली जनरली दे नेवर माइंड ऑल दिस सोशल बैरियर। तो यहाँ पर उनके हिसाब से यह है, यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम एजुकेटेड इतना बनो कि तुम भी मतलब अपना सोशली बैरियर ये सब तोड़ सको। So in the next paragraph, so there is a very small incident that was with the science teacher, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me
in her kitchen. Shiva Subramanian Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiva Subramanian Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramanian Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो यहाँ पर शायद समझ में आ गया है सभी को। तो एक दिन क्या हुआ, शिवा सुब्रमण्यम जो कि साइंस टीचर थे, तो उन्होंने क्या किया, इनवाइट किए अपने घर पे फॉर मील। बट हैविंग लिसन दिस, हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय। मतलब उनकी वाइफ को थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा घबरा गया, हॉरिफाइड, डर गए, अरे एक मुस्लिम बॉय हमारे घर में खाने के लिए आएगा और हमारे जो रिचुअली प्योर किचन में हमारा जो आएगा, तो जनरली हम मानते हैं नहीं, जो ये अलग कास्ट हो गए इनके तो जनरली किचन में हम अलाउ नहीं करते, इस तरह का हमारा सोच है। मगर ये सेम सोच उनका भी वही रहा। उन्होंने कहा अरे मैं मुस्लिम बॉय को मेरे किचन में मैं अंदर आने दूंगा, तो ये थोड़ा सा उनको हरिफाइड लगा, तो उन्होंने मना कर दिए तो सर्व करने के लिए उनके किचन में। तो अभी क्या किए, शिवा सुब्रमण्यन was not perturbed, upset नहीं हुए, having listened this from his wife, he did not get disturbed, did not get upset, or neither he get angry with his wife. मरम बुद्ध ने क्या किया, he served kalam with his own hands and he sat beside means by the side of him and take his meals. At the time his wife was watching them and at the time Kalam is saying that I wonder, मैं उसी वक्त ये सोच रहा था कि उन्होंने इनकी वाइफ कुछ ऑब्जर्व की क्या मेरे खाने के तरीके में, करीब साफ करने के, पानी पीने के तरीके में, इज देयर एनी डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व। तो ये मेरा सोच था। मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा बियॉन्ड है, देयर इज सैटर मतलब वी आर ऑल इक्वल, हम सब सेम है, हम सभी खाते हैं, हम सब पीते हैं एक तरीके से, हम जो हमारे दो आँख है, वी ऑल आर इक्वल। कोई भी ह्यूमन बींग को हमारे से बेकार में हमारे सिस्टम में, सोसाइटी में थोड़ा सा रैंकिंग, सोशली इनक्वालिटी क्रिएट किया गया, सो दैट ही वांट टू सी। बट एट द टाइम आफ्टर आई टेक माई कंप्लीट माई मील एंड व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं हाउस जा रहा था, वो अपने घर निकल रहा था, तभी शिवा सुब्रमण्यन आया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किए दूसरे नेक्स्ट वीकेंड में उनको उनके घर में फिर खाने में आने के लिए। बट हैविंग सीन मी हेजिटेटिंग, but when Shiva Subramanian saw that I am hesitating to say, so he told me not to get upset. He told me don't be upset. And उन्होंने कहा once you decide to change the system, तुम यदि एक बार ठान लिए हो, if you have once decided to change the system, such problems have to be confronted. इस तरह का प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम आएंगे, यानी you have to face such kind of problems. When I visited his house next week, मगर जब उनके घर नेक्स्ट वीक में मैं विजिट करने के लिए गया, शिवा सुब्रमण्यम आयर्स वाइफ टूक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारा बदलाव आ गया है शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ में। क्या उन्होंने नेक्स्ट वीक में जब गया उनके घर में, तो क्या किया, शिवा सुब्रमण्यम वाइफ टूक मी इनसाइड, वो मुझे अंदर अपने घर ले गए, अपने किचन में, और उन्होंने अपने हाथों से सी सर्व मी फूड। सो हियर यू विल एबल टू imagine the society of Rameshwaram. At the first incident we saw that there was the teacher who got reformed. He had to change her perspective. But in the second example here also you will able to see here there was socially equality in the society. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कोई भी whatever the problem है, we have to face, we have to confront it, and we at the end we are able to change it definitely. So then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an
unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो उसी वक्त खत्म हो गया था और ज़्यादातर इंडिया का जो फ्रीडम आज़ादी मिलने वाला था, तो जनरल एट द टाइम गांधी जी ऑल्सो डिक्लेयर इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, अब हम भारतीय लोग अब अपना खुद का वो भारत बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे देश में द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो मतलब जो कि उन्होंने कभी नहीं हुआ था, उन्होंने बिफोर ना सुने थे ना होने हुआ था, उस तरह का जो उम्मीद में सब बैठा वेटिंग कर रहे थे। आई आस्क्ड माई फादर एट द टाइम, उसी वक्त के समय में मैंने पिताजी को पूछा, आस्क्ड फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैं रामेश्वरम छोड़कर दूसरे जगह पढ़ने के लिए यानी रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा था वहाँ पढ़ने के लिए जाने के लिए मैं उनसे परमिशन मांगा। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. तो जब उनको मतलब परमिशन मांगा, व्हेन आई आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो फॉर हायर स्टडी एंड टू लीव रामेश्वरम एट द टाइम, ही टोल्ड मी, जैसे कोई वो दिमाग में सोच रहे लाउडली जैसे सोच रहे, तो उन्होंने कहा अबुल, वेरी डियरली ही इज एड्रेसिंग अब्दुल कलाम, अबुल आई नो यू, मुझे पता है, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें आगे जाना है, आगे बढ़ना है। जैसे सीगल, क्या क्या सीगल हमेशा फ्लाई नहीं करता है क्या, उसका जो अकेले उसका कहीं घर भी नहीं होता है। तो इन दिस वे यू हैव टू मूव ऑन, तुम्हें आगे बढ़ना है, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू गेट सक्सेस। और उन्होंने जब मेरी मदर शी वॉज हेजिटेटिंग टू अलाउ मी टू गो फॉर हायर स्टडी एट द टाइम, माई फादर टोल्ड माई मदर, उन्होंने मेरे मदर बोले, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उन्होंने खलील जिब्रान की एक कोटेशन उन्होंने बोला कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये जो कोटेशन है खलील जिब्रान के, तो तुम्हारे बच्चे नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग इटसेल्फ, उनके जीवन के खुद के जो सन्स एंड डॉटर्स है, एंड दे कम थ्रू यू, मीन्स यू हैव गिवन बर्थ थ्रू देम, बट यू मस्ट नॉट गिव देम योर थॉट, यू माई गिव देम लव, तुम्हें प्यार दे सकते हो, मगर तुम अपना सोचने के तरीके ये यू कैन नॉट गिव देम, दे हैव देयर ओन वे, उनका जो अपना तरीका है, दे हैव देयर ओन थॉट एंड इन दिस वे दे हैव टू ग्रो अप, दे हैव टू मूव ऑन। सो दिस इज द चैप्टर माई चाइल्डहुड, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। सो दिस इज ऑल अबाउट APJ Abdul Kalam's life. So let's discuss few question answer. The first question is, where was Abdul Kalam born? The answer is, Abdul Kalam was born in the town of Rameshwaram. How old was Abdul Kalam when the Second World War broke out? And the answer is, Abdul Kalam was 8 years old when the Second World War broke out. And the third question is, when did the Second World War break out? The answer is, the Second World War broke out in 1939. I think all of you know there are the two world wars. One is the First World War and another is the Second World War. This is all about the chapter My Childhood. I hope all of you understood the chapter very well. Thank you.